नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और समझते हैं एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशंस के बारे में। ये लर्निंग वीडियो द्विभाषा में बनाई गई है, जिसमें विषय का पहले अंग्रेजी भाषा में वर्णन किया जा रहा है और बाद में हिंदी में दोहरान और समझाइश की जाती है। These learning videos are designed in bilingual script. First, the subject matter is described in English language and the same is revised and explained in Hindi. Let's start. Two charges of equal magnitude and opposite polarity spaced at a small distance and rigidly connected with each other is called electric dipole, as shown in this blue highlight. The product of any one charge and the small distance between charges is called dipole moment, and dipole moment denoted by capital P is a vector quantity, and along axis it is directed from negative charge to positive charge direction. A system has two charge, one positive 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and second of same magnitude but opposite polarity negative 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb are respectively situated on z axis, one at ordinate 0 0 minus 1.5 micrometer and the second is 0 0 plus 1.5 micrometer coordinates. What is total charge of this system and electric dipole moment? So these two charges are of equal magnitude and opposite polarity and are spaced very close to each other. So the total charge is the sum of two, and if we make sum of equal and opposite charge, it becomes 0. So net charge of a dipole is always 0, and the dipole moment is product of one charge magnitude and the distance between charges. One charge magnitude is 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and the separation is 3 micrometer and the product is 7.5 into 10 to the power minus 13 coulomb meter is the dipole moment. And dipole moment is a vector and it is directed from negative charge direction to positive charge direction along this dipole axis, and here it is in minus z axis direction. Electric dipole is a micro level molecule or atomic level concept. In a molecule we have positive charge nucleus and negative charge electron orbits around it, and if center of positive charge and center of negative charge coincide with each other without any separation, as in this H2 molecule, the center of these two positive nuclei and center of these two orbital electrons coincides, so such molecules behave as non-polar molecule. Methane is another similar type of example. Every CH bond got a little charge displacement and a small amount of dipole moment, but all four dipole moment are symmetrically directed in such a manner that resultant dipole moment of this methane molecule becomes 0. So these molecules are non-polar molecules, whereas on the other hand in water or other polar molecules the center mass of positive charge doesn't coincide with center mass of negative charge, and this eccentricity of opposite polarity charge form a dipole moment, and such molecules are called as polar molecules because each molecules possess inherent intrinsic dipole moment. Here these two atomic level dipole moment at an angle of 104.5 degree form a resultant dipole moment in mid directions. When such molecules are placed in electric field, the randomly distributed dipole moment of these molecules will align themselves in the direction of applied electric field, and such polar substance which won't show any resultant dipole moment in the absence of external field will show resultant dipole moment in the presence of external electric field. दो समान मान के लेकिन विपरीत, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ध्रुवता के आवेश एक दूसरे से एक छोटी दूरी के साथ दृढ़ता से अगर जुड़े रहें तो इस तरह की संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और एक विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली अक्ष में ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अगर एक निर्देशांक तंत्र में एक धनात्मक 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम का आवेश और दूसरा इसी मात्रा का ऋण आवेशित आवेश एक साथ जुड़े हुए z एक्सिस के अलोंग क्रमशः 0 0 माइनस 1.5 माइक्रोमीटर और 0 0 प्लस 1.5 माइक्रोमीटर पर स्थित हो, तो इस पूरे तंत्र में शुद्ध आवेश की मात्रा क्या है और इसमें क्या द्विध्रुव आघूर्ण है। तो क्योंकि दोनों
दोनों आवेशों के मान बराबर हैं और ध्रुवता विपरीत है और इनके बीच में दूरी बहुत कम है, तो इनका जो संयुक्त रूप से अगर कुल आवेश देखा जाए तो धन और ऋण बराबर मान जुड़कर शून्य हो गए हैं। तो एक विद्युत द्विध्रुव शुद्ध रूप से आवेश उदासीन होता है और एक द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है डाइपोल मोमेंट का मान, वो किसी एक आवेश का मान 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम में दोनों के बीच की दूरी, ये मूल बिंदु से 1.5 माइक्रोमीटर नीचे और ये 1.5 माइक्रोमीटर ऊपर, कुल 3 माइक्रोमीटर की ये जो दूरी है उसका जो गुणनफल है 7.5 × 10⁻13 कूलाम मीटर, वो इस संरचना का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो अक्ष है उसमें ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ यहाँ -z एक्सिस के अलोंग अपनी दिशा रखेगा। भौतिक रूप से विद्युत द्विध्रुव सूक्ष्म संरचनाओं आणविक स्तर की घटना है। अणुओं में धनावेशित नाभिक और कक्षीय चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिकीय धनावेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है, जैसे यहाँ H2 अणु की बात करें यहाँ इस बीच की स्थिति में, और कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान केंद्र के आपस में अगर एक ही स्थान पर मिलान हो जाता है तो ऐसा अणु जिसके धन और ऋण आवेश के केंद्र एक ही स्थान पर हैं, वो एक अध्रुवीय अणु के जैसे व्यवहार करता है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। अगर आप मीथेन देखें तो हर कार्बन और हाइड्रोजन बंधन में हल्का कार्बन के पास ऋणावेश और हाइड्रोजन के पास धनावेश का द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन ये जो चारों बंधनों के द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सममित कोणीय स्थितियों में जब स्वयं को विन्यासित करते हैं तो इनका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो मीथेन भी एक तरह का अध्रुवीय अणु बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ध्रुवीय अणु हैं, जैसे ये पानी का अणु H2O है जिसमें 2 धनावेशित H परमाणु और ऑक्सीजन के इस ऋणावेशित स्थिति की परस्पर एक अंतराल रखती है, दोनों एक ही स्थान पर नहीं है, और धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र के बीच की ये दूरी और आवेश की मात्रा का गुणनफल यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया है। इस तरह के ध्रुवीय परमाणुओं में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वयं को यादृश रूप से रैंडमली अलग अलग दिशाओं में विन्यासित कर लेता है, और ऐसा पदार्थ जिसके बहुत सारे द्विध्रुव आघूर्ण यादृश रूप से वितरित हैं उसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन ऐसे ही ध्रुवीय पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये द्विध्रुव आघूर्ण स्वयं को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुदिश करके एक परिणामी विद्युत प्रभाव और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस पदार्थ में बना लेते हैं। When we have to find out electric potential and electric field intensity contribution of an electric dipole, the observation position distance is measured from the center of dipole moment and the position vector direction is measured with the direction of dipole moment, which is along the axis or the line joining two charges from negative charge to positive charge. So if we have to find out electric potential at an observation point P which got a distance r from center of dipole moment, and this r is very large compared to the separation of two charges, and this position makes an angle theta equal to 0 degree with the direction of dipole moment. Now at this P position electric potential of positive charge is positive potential and electric potential of negative charge is negative potential, but the distance of positive charge from observation position is r minus a and distance of negative charge from observation position is r plus a. So positive potential is little higher than negative potential and resultant positive potential can be obtained by taking LCM, and LCM is product of r plus a and r minus a, that is r square minus a square, and when we take kq common it is r plus a at this numerator position and r minus a at second numerator position with a negative sign in between, and calculation will cancel out r and results in 2a, and 2a with q is q2a or dipole moment capital P, and since distance of observation position r is very large compared to dipole dimension, so we can neglect a square compared to r square, and this relation become kp upon r square. On this axial position at r distance electric potential is directly proportional to magnitude of dipole moment. That means higher the amount of charge or higher the separation between two charges, higher would be the potential contribution of dipole at any observation position, and it is inverse of the square of the distance. That means at double distance electric potential will become 1/4. Take another observation which have a distance r from center
center of dipole, but it makes an angle 180 degree with dipole moment. So it is on joining line towards negative charge. So separation of negative charge from observation position is smaller than separation of positive charge. So at smaller distance position, this negative charge produce more negative potential than positive potential, and net potential as difference of positive charge, positive potential contribution, and negative charge, negative potential results in a certain amount of negative potential. When we take KQ common and take LCM and make simplification, it will be Q into 2A, that is dipole moment P. Again the relation is Kp upon R square with the sign negative. So towards positive charge side potential is positive, and towards negative charge side potential is negative, and at both sides it is inverse of square of the distance, or at double distance electric potential becomes 1/4. Let's take a general condition where observation position have a distance small r from center of dipole, and position vector makes an angle theta with dipole moment direction. So in this case, positive charge contribute positive potential at r1 distance as kq by r1. Similarly, this negative q charge at r2 distance produce negative potential kq upon r2, and the resultant potential is a difference. If I draw perpendicular from B point on this midline, then I can say from P to this blue marking, the distance is r1, and r minus this a cos theta distance. This is a and this theta is a cos theta. So r minus a cos theta is r1. Similarly, this a with theta projection is a cos theta, and r plus a cos theta is r2. So for negative charge, the distance is r plus a cos theta, and for positive charge it is r minus a cos theta. When I take LCM, it is r square minus a square cos square theta. At numerator side, this will have r plus a cos theta, and this negative have r minus a cos theta component, and again r get cancel out, and it is kq 2a cos theta divided by r square minus a square cos square theta. And all observation distance as here r is very large compared to this dipole separation. So since r is very large compared to a, we can neglect a square cos square theta as compared to r square, and q 2a is dipole moment P. So this potential become kp cos theta upon r square. Potential is inverse of square of observation position distance. It also depends upon direction of position vector with dipole moment, and if that angular displacement is theta, then potential contribution of a dipole is directly proportional to cos theta. If I take a perpendicular mid sector line with theta equal to 90 degree, cos 90 becomes 0, I found that potential everywhere on this mid bisector is 0. Distance of any point on this quadrature axis from positive charge and negative charge is the same. So contribution of positive charge and negative charge is equal and opposite. So resultant potential on this q axis everywhere is 0, and to positive side electric potential is positive, and to negative charge side electric potential is negative. एक विद्युत द्विध्रुव के विद्युत प्रभावों, बाह्य स्थितियों पे विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के निर्माण को कैलकुलेट करते समय परीक्षण स्थलों की दूरियां द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती है, जैसे r यहाँ, और ये जो दूरी सदिश है इसकी कोणीय जो स्थिति है वो द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की दिशा माइनस से प्लस आवेश को जोड़ने वाली रेखा से नापी जाती है। तो अगर थीटा 0 पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही अगर केंद्र से r दूरी पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी हो, तो हम पाते हैं कि धनावेश की परीक्षण स्थल से दूरी है, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम 2a लें तो वो केंद्र से दूरी r में से a घटाकर r माइनस a है। तो एक धन q आवेश जो धनात्मक विभव परीक्षण बिंदु P पर बनाएगा वो हो गया है kq अपॉन r माइनस a। इसी तरह से r में ये a दूरी जोड़ने पर ऋणावेश की परीक्षण स्थल P से दूरी हो गई है, तो r प्लस a दूरी पर q आवेश का विभव जो ऋणात्मक आवेश के कारण ऋण विभव है वो हो गया है माइनस kq अपॉन r प्लस a। दोनों विभव धन और ऋण विभव का जो परिणामी विभव है वो एलसीएम लेकर हम गणना कर सकते हैं। r प्लस a और r माइनस a के गुणा से एलसीएम आ गया है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। kq अगर मैं उभयनिष्ठ बाहर ले लूं तो यहाँ अंश में r प्लस a और दूसरी तरफ अंश में r माइनस a में जब घटाव किया गया तो r निरस्त हो गया और ये 2a बन जाएगा, और q और 2a डाइपोल मोमेंट p है, और क्योंकि ये दो दूरियां हैं मध्य बिंदु से परीक्षण
स्थल की आर, उसकी जो मान है वो द्विध्रुव की जो विमाएं हैं ए, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। और विभव का हमारा रूप हो गया है kp अपॉन आर स्क्वायर, द्विध्रुवागुण की अक्ष के अनुदिश किसी दूरी r पर जब डाइपोल मोमेंट p है और हम देख रहे हैं कि विभव द्विध्रुवागुण के समानुपाती है। अगर द्विध्रुव में आवेश की मात्रा या आवेशों के बीच में दूरी अधिक होगी, द्विध्रुवागुण अधिक होगा, तो उसका r दूरी पे विभव योगदान भी अधिक होगा। और ये जो r दूरी पे द्विध्रुवागुण p का विद्युत विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दुगनी दूरी पे विद्युत विभव 1/4 हो रहा है और आधी दूरी पर ये 4 गुना हो रहा है। अगर हम द्विध्रुवागुण के ठीक विपरीत दिशा में अक्ष के अनुदेश थीटा 180 डिग्री पे विद्युत विभव निकालना चाहें, तो अब केंद्र से जो दूरी r है परीक्षण स्थल की, वो अगर ऋण आवेश से देखी जावे तो वो r से a कम है, तो इस ऋण आवेश का ऋणात्मक विभव kq अपॉन r माइनस a अधिक मान का होगा। और यहाँ धन आवेश की जो दूरी है केंद्र से जो परीक्षण स्थल की दूरी है r, उसमें a जोड़कर r प्लस a हो गई है और धन आवेश का धन विभव मात्रा में कम होगा, तो जो परिणामी विभव है इस स्थिति में वो ऋणात्मक होगा। एक बार फिर kq बेनिस लेकर और यहाँ एलसीएम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लें, तो पहले अंश में r माइनस a और दूसरे अंश में r प्लस a में जब गणना की गई घटाव की, तो r तो निरस्त हो गया और ये 2aq के साथ मिलकर डाइपोल मोमेंट हो गया है। और क्योंकि r की तुलना में द्विध्रुव की विमा a बहुत छोटी है, तो a स्क्वायर को अगर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इस अंतराल में नगण्य मान लेते हैं, तो हमारा जो द्विध्रुव का विभव थीटा 180 डिग्री पर kp अपॉन r स्क्वायर आया है वो ऋण प्रकृति का आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि अक्ष पे धनावेश के दूसरी तरफ तो धनात्मक विभव बनेगा और ऋणावेश की दूसरी तरफ ऋण विभव बनेगा। अगर एक सामान्य स्थिति में परीक्षण बिंदु P जो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी रखता है और द्विध्रुवागुण के साथ थीटा कोणीय स्थिति पर है, वहां अगर विद्युत विभव निकालना हो तो हम देखते हैं कि यहाँ जो धन आवेश है उससे दूरी r1 पे जो धन विभव का योगदान है वो kq अपॉन r1 हो गया है। इसी तरह से ऋणावेश की परीक्षण स्थल से जो दूरी r2 है, उस r2 दूरी पे जो ऋणात्मक विभव योगदान ऋणावेश का आया है वो kq अपॉन r2 हो गया है। और परिणामी विभव अध्यारोपण से धनावेश और ऋणावेश के विभव योगदान को जोड़कर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम किसी आवेश से ये जो केंद्र बिंदु को परीक्षण स्थल से जोड़ने वाली r दूरी है उस पर अभिलंब डालें, तो ये जो काली रेखा है वो a और थीटा कोण पे घटक a cos थीटा को प्रदर्शित कर रही है। इसी तरह से अगर मैं r2 दूरी पर अगर अभिलंब डालूं तो ये काली रेखा भी a cos थीटा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो r दूरी है इसमें से अगर मैं a cos थीटा घटा देता हूं तो ये r1 दूरी आ गई, तो r1 की जगह मैं r माइनस a cos थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह से इस r2 दूरी को मैं इस r में a cos थीटा का जोड़ समझ सकता हूं, तो यहाँ r2 की जगह मैं r प्लस a cos थीटा लिख सकता हूं। और अब परिणामी विभव ज्ञात करते समय मैं जब एलसीएम लेता हूं तो यहाँ दोनों हर राशियों के गुणा से ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया है। kq को बेनिस्ट लेने पर यहाँ अंश में r प्लस a cos थीटा और दूसरी राशि में ऋण चिन्ह के साथ अंश में r माइनस a cos थीटा आ गया है। r यहाँ गणना करने पर निरस्त हो गया है। ऊपर जो 2a cos थीटा kq के साथ जो आया है उसमें q और 2a प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट है। और परीक्षण स्थल की मध्य बिंदु से जो दूरी r है उसकी तुलना में डाइपोल की जो विमा a है वो बहुत छोटी है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम r स्क्वायर की तुलना में अगर नगण्य मान लें तो यहाँ डिनोमिनेटर में केवल r स्क्वायर आ सकता है। और हमारा विभव का रूप यहाँ पीली हाईलाइट में मध्य बिंदु से r दूरी और डाइपोल मोमेंट से थीटा कोणीय स्थिति पर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया है। और स्पष्ट है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना कर रहा है, दुगनी दूरी पे 1/4 और आधी दूरी पे 4 गुना हो रहा है। वहीं ये डाइपोल मोमेंट के साथ जो कोणीय स्थिति थीटा बन रही है उसके cos थीटा के भी समानुपाती है। अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण से 90 डिग्री कोण बनाती हुई इस नीली रेखा पर विद्युत विभव की गणना करें तो हम पाते हैं कि किसी भी बिंदु पर धनावेश की जो दूरी है और जो ऋणावेश की दूरी है वो एक समान है, तो धनावेश का धन विभव ऋणावेश के ऋण विभव के बिल्कुल बराबर होगा और परिणामी विभव 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 है। और इस निरक्ष पर जहां विभव सब जगह 0 है उसकी
धनावेश की तरफ सभी जगह पे विद्युत विभव धनात्मक है और ऋण की तरफ सभी जगहों पर परिणामी विभव ऋणात्मक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइपोल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट एनी ऑब्जर्वेशन पोजीशन, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पोजीशन इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड इट्स एंगुलर पोजीशन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड ऑन joining line from negative charge to positive charge direction as shown here by p vector direction. So for an axial position of theta equal to 0 degree, if we consider a observation position C, then electric field of positive charge having distance r minus a is given by this kq by r square relation, and similarly electric field of negative charge have distance r plus a is given by this yellow highlight relation kq upon r plus a whole square. Now two electric field are opposite, so resultant electric field is just the difference of bigger magnitude and smaller magnitude, and when we take LCM, the product of two parameter will become LCM, and that when kq is taken as common, this expression got numerator figure r plus a whole square, and this figure got a numerator figure r minus a whole square, and expansion of these and simplification results in 4ra, and we know q and 2a is dipole moment, so this numerator expression become 2kp. Now at denominator, a square is quite small compared to r square. If we neglect a square, this become r raised to power 4, and with this r, this become r cube, and our resultant electric field is 2kp upon r cube in the direction of electric dipole moment on joining line from negative charge to positive charge, as it is also illustrated by these force lines. Electric field of dipole on axis to the other side of negative charge is also of same magnitude and same direction as illustrated here. The negative charge produce higher magnitude of electric field in radial inward direction as shown by this blue arrow, and positive charge produce radial outward electric field of relatively smaller magnitude, and the difference of two resultant electric field can be calculated on similar line equal and in the same direction of electric dipole moment. And interesting fact is that electric field of a dipole is inverse of cube of distance. So on axial theta 0 position at r distance, if electric field is E and we have to find out electric field at r by 2 distance to the other side, then as per 1 by r cube relation, half distance will make electric field 8 times with the same direction. So both electric field are in the direction of dipole moment, and at half distance electric field become 8 times in intensity. The mid bisector line of a dipole is known as equatorial axis or q axis, and we have to find out electric field intensity at point P. So positive charge will produce electric field in radial outward direction as shown here, and this negative charge produce electric field in radial inward direction, and both charge got same magnitude and same distance of observation position. This distance of observation position is if r, then electric field of both positive charge and negative charge is kq upon r square, and this r is Pythagoras calculation of this dipole dimension. If taken as 2a, then this half distance is a, then this capital R is Pythagoras of small r and small a, and is r square is given as small r square plus a square. Now when two electric field are equal in magnitude, the resultant is just midway, and if this angle is theta, then this resolve component of electric field of positive charge and negative charge along this midline is E cos theta, and two equal component added up become 2E cos theta. Now electric field intensity is kq upon small r square plus a square, and cos theta from this triangle is base upon hypotenuse a upon square root of r square plus a square, and q2a is dipole moment P, and this 1 power and half power become 3 by 2 power of r square plus a square, and if a is very small compared to r, we can neglect this a, and this denominator become r cube, and my electric field become kp upon r cube opposite to the direction of electric dipole moment on q axis. So electric field is of half magnitude at q axis as compared to direct axis where the relation was 2 kp upon r cube at the same distance r, and both electric field of direct axis and quadrature axis or anywhere else obey 1 over r cube relationship, and electric field of direct axis and q axis are opposite in direction. Electric field intensity of dipole on direct axis and quadrature axis got opposite directions, and every
everywhere it got 1 over r cube relationship. That means at double distance it become 1/8. And if we see force lines distribution, it got cylindrical symmetry about its axis. दो बराबर और विपरीत आवेशों के नजदीक रखे दृढ़ तंत्र विद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करते समय किसी परीक्षण स्थल की जो दूरी है वो द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से नापी जाती है। जैसे यहाँ बिंदु C द्विध्रुव से r दूरी पर है और इस परीक्षण स्थल की जो स्थिति है वो द्विध्रुवागुण सदिश की दिशा से नापी जाती है। बिंदु C द्विध्रुवागुण सदिश की दिशा में द्विध्रुव की अक्ष पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कोण के साथ हो तो इस बिंदु पर धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ r में से a घटाकर जो दूरी r माइनस a दूरी आई है उस पर के क्यू अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर हो गया है। इसी तरह से ऋणावेश की स्थल से दूरी r प्लस a है और इस ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ के क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर हो गया है। दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही कार्य रेखा पर विपरीत दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अधिक मान जो धनावेश द्वारा निर्मित हुआ है बाहर की तरफ उससे कम मान के विद्युत क्षेत्र को घटाने से ज्ञात हो जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम लेवें दोनों हर राशियों का गुणा करें तो ये जो r प्लस a और r माइनस a है वो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ के क्यू जब हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो पहले फलन में अंश में r प्लस a का होल स्क्वायर और दूसरे फलन के अंश में r माइनस a का होल स्क्वायर को जब हमने घटाया है तो ये 4ra आ गया है और q और 2a के प्रोडक्ट को आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुवागुण कहते हैं। तो ये जो अंश भाग है वो 2kp इंटू r हो गया है और हर में द्विध्रुव की विमा a परीक्षण स्थल की दूरी r की तुलना में काफी छोटी होती है तो a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में अगर नगण्य करते हैं तो यहाँ हर में r की घात 4 आई है जो इस r के साथ हल करने पर यहाँ हर में r क्यूब बता रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक फील्ड परीक्षण स्थल की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात दुगनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/8 रह जाएगी और आधी दूरी पे वो 8 गुना हो जाएगी। तो थीटा 180 डिग्री पे भी ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर नजदीक स्थितियां होने से अधिक मान का है और धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर अधिक दूरियां होने से कम मान का है और परिणामी विद्युत क्षेत्र एक बार फिर द्विध्रुवागुण की दिशा में ऋणावेश से धनावेश की दिशा में है। अक्ष पर थीटा 0 और थीटा 180 की स्थितियों पे दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुवागुण की दिशा में है और दोनों स्थान पर या सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर थीटा 0 पे r दूरी पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बन रही है तो थीटा 180 पे आधी दूरी r/2 पर यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता 8 गुनी और उसी दिशा में रहेगी। एक द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर यह जो लंब विभाजक है इसे निरक्ष या क्यू एक्सिस कहते हैं और क्यू एक्सिस पे विद्युत द्विध्रुवागुण से थीटा 90 डिग्री पे अगर किसी r दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र कैपिटल R दूरी पे त्रिज्या बाहर की तरफ और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र भी उसी R दूरी पर जोड़ने वाली रेखा पर अंदर की ओर चित्रानुसार होगा। दोनों आवेश के मान और दोनों आवेशों से परीक्षण स्थल P की दूरियां एक समान होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ/R स्क्वायर एक समान होगा और यहाँ R स्क्वायर को दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के आधे a और इस परीक्षण स्थल P की मध्य बिंदु से दूरी R के साथ पाइथागोरस रूप से कैलकुलेट किया जा सकता है और इस दूरी का वर्ग हो गया है स्मॉल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जहां स्मॉल r प्रेक्षण बिंदु की द्विध्रुव से दूरी है और a मध्य बिंदु से आवेशों की द्विध्रुव में विमा है। जब दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं मान में बराबर होती हैं तो उनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ठीक मध्य में होगा और इस विद्युत क्षेत्र का थीटा कोण पे जो घटक है वो E cos थीटा और दूसरे का भी E cos थीटा जुड़कर एक ही दिशा के दो सदिश 2E cos थीटा हो जाएंगे। जहां ये थीटा और ये थीटा मान में बराबर है हम E की जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो आवेश यहाँ कैपिटल R दूरी पर बना रहे हैं उसका मान रखें और cos थीटा की जगह इस समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का अनुपात लिखें। तो ये जो नीचे हर का स्वरूप है वो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1 और आधी 3/2 हो गई है और यहाँ अंश में q और 2a का गुणा द्विध्रुवागुण का मान p हो गया है। सामान्यतः द्विध्रुव की विमा a परीक्षण स्थल की दूरी की तुलना में काफी कम होती है तो यहाँ a स्क्वायर को अगर हम नगण्य मान लें तो हर में ये r³ स्वरूप आने पर निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र KP/R³ और उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से ठीक विपरीत -p कैप डायरेक्शन में आ गई है जो यहाँ बल रेखाओं से भी दिख रही है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की तरफ है वहीं इस निरक्ष थीटा 90 पे विद्युत क्षेत्र
की दिशा ठीक विपरीत है। अगर इन बल रेखाओं का वितरण हम देखें तो हम पाएंगे कि इस द्विध्रुव की अक्ष के सापेक्ष यहाँ एक बेलनाकार सममिति बल रेखाओं में प्रदर्शित हो रही है और बल रेखाओं का अक्ष पे सघनता और निरक्ष पे थोड़ी विरलता इस सूत्र में अक्ष पे 2kp/r³ और निरक्ष पे kp/r³ समान दूरी पे अक्ष की तुलना में निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आधा होना प्रदर्शित कर रही है और बल रेखाओं की दिशा ये भी बता रही है कि अक्ष का विद्युत क्षेत्र और निरक्ष का विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में है। दिस एग्जाम्पल विल वेरी वेल एक्सप्लेन एंड कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सिस गिवन बाय 2kp/r³ in the direction of dipole moment and resultant electric field on quadrature axis given by kp/r³ opposite to dipole moment direction very well. If a charge q placed on direct axis at r distance experience a force F, then we have to find out force on the same charge placed on quadrature axis at r/2 distance from dipole moment. So at both positions electric field is inverse of cube distance. So at half distance electric field at direct axis become 8 times, but at quadrature axis this 2 is missing. So at quadrature axis at r/2 distance it is 4 times, but in opposite direction. So we can say electric field at r/2 distance on quadrature axis is -4e. So force on q charge is 4 times of previous force but in opposite direction -4f. ये उदाहरण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³ द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा में और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता kp/r³ द्विध्रुवाघूर्ण की विपरीत दिशा में, इनके बीच में तुलना को बहुत सहज रूप से समझा देगा। हमें दिया हुआ है कि एक आवेश q जब अक्ष पे r दूरी पे रखा जाता है तो उस पे बल F कार्यरत है। वही आवेश को अगर हम निरक्ष पर r/2 दूरी पर रखेंगे तो उस पर कितना बल उत्पन्न होगा ये हमें ज्ञात करना है। हमें मालूम है एक विद्युत द्विध्रुव का सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम दूरी को आधा कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर 8 गुना हो जाएगी और अक्ष और निरक्ष के सूत्रों में देखिए आप, अक्ष पर ये 2kp/r³ है और निरक्ष पे ये केवल 1 kp/r³ है। तो समान दूरी पर निरक्ष का विद्युत क्षेत्र तीव्रता आधी है तो ये 8e की बजाय निरक्ष पे r/2 दूरी पे 4e होगी और इसकी दिशा भी विपरीत होगी। तो निरक्ष पे r/2 दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -4e कहलाएगी, जहां r दूरी पे अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e है। ऐसी स्थिति में निरक्ष पर r/2 दूरी पर रखे हुए आवेश पर जो बल है वो माइनस पूर्व बल का 4 गुना लेकिन विपरीत दिशा में ज्ञात हो जाएगा। होपफुली दिस लर्निंग वीडियो कुड एक्सप्लेन कैलकुलेशन ऑफ स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एज पर योर expectations, and we presume this could help you in scoring high marks in all type of examinations. We wish आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें. Have nice time. Thank you very much.